Good morning, students. Today's class is the third class of cash flow statement. I think already we have cleared the first and second class. The first class is wholly about three things. I think we have already covered all these things. First one is cash, second one is flow, third one is statement. याद है ना? कैश में हम क्या पढ़े थे? चार चीज. वन हो गया कैश, सेकंड हो गया बैंक, थर्ड हो गया मार्केटेबल सिक्योरिटी, फोर्थ हो गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. याद है ना? कैश मींस कैश, लिक्विड कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. फ्लो मतलब क्या होता है रे? whether it is an outflow or whether it is an inflow. समझ में आ रहा है? If it is an outflow, we have to deduct. If it is an inflow, we have to sum. थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ओके, तो याद आ जाएगा हम क्या पढ़े थे. स्टेटमेंट, व्हाट इज स्टेटमेंट? इट इज द comprehensive analysis of all these matters. समझ में आ रहा है? comprehensive analysis of all these matters. all these matter मतलब flow and cash. ये कैश कितना फ्लो हो रहा है, क्यों फ्लो हुआ था, सोच लो. क्यों का मतलब क्या? मैंने जब केस फ्लो करवाया, विद रॉ मटेरियल के लिए करवाया या लेबर के लिए करवाया या कौन सा एक्सपेंसेस था, बिकॉज़ ऑफ व्हाई द फ्लो विल बी ऑकर, वेदर इट इज एन आउटफ्लो और इट इज एन इनफ्लो. इज दैट क्लियर? सो वी हैव टू क्लियर कैश फ्लो स्टेटमेंट. So that after that we have discussed there are three types of cash flows or three type of activities in our cash flow statement. First one is operating activity. Second one is investing activity. Third one is financing activity. Okay, इतना हम लोग पढ़े थे. तो ये जो तीनों एक्टिविटी में क्या आता? When day to day business transactions are recorded, then it is known as operating activity. When our investing activity, on which I will invest my money, is coming under investing activity, that is purchase of shares. Purchase of shares. Again, purchase of fixed asset, purchase of furnitures, purchase of any fixtures, purchase of goodwill, purchase of patent. ये सब किस में आएगा? इन्वेस्टमेंट में आएगा. लास्ट वन इज फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग का मतलब होता है वेयर आर द सोर्स ऑफ माय फाइनेंस इज नोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो मैंने फिर से दो डिफरेंस बताया था. व्हेन इंटरेस्ट और डिविडेंड इज रिसीव्ड, इट इज कमिंग अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिकॉज़ व्हेन वी विल डू सम इन्वेस्टमेंट, आफ्टर दैट वी विल गेट एन इंटरेस्ट. So in case of interest received is coming under investment activity. When I will collect some money, we have to pay interest. So that paying of interest is known as financing activity. Is that clear? फिर हम दो चीज पढ़े थे. One is direct method, second one is indirect method of cash flow statement. हम लोग पढ़े थे, फटाफट डिस्कशन करते हैं. क्या बोला था? General accepted accounting principle. क्या बोल रहा था कि हमको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को अलग से दिखाना पड़ेगा. ये कौन सा स्टेटमेंट था? सॉरी, एस नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे. जब मेरा क्या आया? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. तब मेरा क्या आया? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7. तब ये क्या बोल रहा है कि हमको क्या करना पड़ेगा? जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होता है अलग से दिखाना नहीं पड़ेगा. तो हमको IFRS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से अभी प्रिपेयर करना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट. Two types of cash flow statement is there. One is a direct, second one is indirect method. मतलब direct method एक होता है, indirect method एक होता है. When all the item of cash inflows and outflows are clearly mentioned in the question, then have to apply direct method. When in this case the proper amounts, that is cash collection from creditors, cash collection from debtors, cash paid to creditors, what are the salary amount, what are the other expenses, all these expenses are clearly mentioned in a question, then only we will apply the direct method.
when in a question all these things are not mentioned, we have to calculate all these things by applying my extra cost or expenses item to be add back, income item to be reverse back, then it will be known as indirect method. हमने क्या किया था, छोटा वाला क्वेश्चन किया था, अभी इनडायरेक्ट मेथड को एक क्वेश्चन करते हैं. ओके, पहले से थोड़ा सा एक मिनट इनडायरेक्ट कॉस्ट का दिखते हैं, फिर क्वेश्चन के लिए चलेंगे. मैंने क्या बोला था, D's and P&L अकाउंट. ओके, P&L अकाउंट इधर क्या था, ट्रेडिंग, ये हो गया ट्रेडिंग क्रेडिट, ये हो गया ट्रेडिंग डेबिट, ये हो गया PL डेबिट, ये हो गया PL क्रेडिट. हमको क्या करना पड़ेगा, इधर मेरा क्या है, प्रॉफिट. ओके, हमको दो चीज यहां से निकालना पड़ेगा. वन इज नॉन ऑपरेटिंग, सेकंड वन इज नॉन केस. इधर से भी इनकम से दो चीज निकालना पड़ेगा. वन इज नॉन ऑपरेटिंग, सेकंड वन इज नॉन कैश. समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला था, नॉन कैश को इधर से निकालो, बाहर फेंको, कहीं एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम और सॉरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल बी वेदर एट बैक और लेस इफ, अच्छे से देखो, ये मेरा हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये मेरा हो गया फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट. ये क्या बोल रहा है, अगर ये नॉन केस इधर का आइटम है, नॉन केस एक्सपेंसेस है, तो मुझे प्रॉफिट में ऐड कर दो, इसको निकाल के बाहर फेंक दो. समझ में आ रहा है, थोड़ा सा याद रखो, ये अगर मैं जाके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर रहा हूं, तो मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कौन सा भी एक्टिविटी से मुझे माइनस करना पड़ेगा. यहां से इसका मतलब हो गया, इसको यहां से निकालो, यहां रख डालो. तुमको क्या करना पड़ेगा, इफ इट इज अ नॉन केस एक्सपेंसेस, इसको निकाल के बाहर फेंक दो. ये अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो दो मतलब डिसाइड करो कि वेदर इट इज बिलोंग्स टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और इट इज बिलोंग्स टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालो, इन्वेस्टिंग में डालो. अगर फाइनेंसिंग का है, ऑपरेटिंग से निकालो, फाइनेंसिंग में डालो. दैट्स ऑल, इतना ही पॉइंट था. वही हमारा इनकम में होता है. अगर इनकम देखो, हम जब करते हैं ये सब एक्सपेंसेस, हमको क्या करना पड़ेगा, इधर एड बैक करना पड़ेगा. तो ये चीज दोनों में मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा. जैसे सोच लो, यहां है प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं, लॉस ले लो, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. ये लॉस एक्सपेंसेस आइटम में पड़ेगा, डेबिट से. इसीलिए यहां जो था, मैंने प्रॉफिट में क्या कर दिया, एड बैक कर दिया. अब प्रॉफिट में मैं अगर लॉस किया, तो ये मेरा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज का बात है. मैं इधर से क्या बोल रहा हूँ, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये समझ गए ना, फिर बात खत्म. कितना भी टफ क्वेश्चन दो, आपको थ्योरेटिकल कांसेप्ट एकदम होना चाहिए, तभी प्रॉब्लम का कुछ जरूरत नहीं है. समझ में आ रहा है. ये क्या बोल रहा है, इफ नॉन केस आइटम इज देयर, इसको निकाल के बाहर फेंको. इफ इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम इज देयर, then you have to do one thing, you have to find out whether it is in investing, whether it is in financing. अगर ये एक्सपेंसेस है इधर, तो आपने डेफिनेटली इसको ऐड किया होगा, मतलब ये दोनों से मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. इसका उल्टा एकदम इनकम साइड है. अगर ये इनकम साइड पूछे, तो मेरा प्रॉफिट को क्या कर दिया है, एकदम बढ़ा दिया है. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा. इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा. फिर से बोल रहा हूं, एक एग्जांपल लेते हैं. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. मैंने जब इन्वेस्टमेंट एक सेल किया, तभी मेरा प्रॉफिट कितना हुआ था, 500 हुआ था. ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग आइटम है. अगर ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो इधर नहीं आना चाहिए, तो ये आ गया है. इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, ऑपरेटिंग आइटम से कितना माइनस कर दिया, 500 माइनस कर दिया. जब मैं 500 माइनस इधर कर रहा हूं, ये दोनों में से कहीं भी एक मुझे प्लस कराना पड़ेगा. समझ में आ रहा है. मेरा किस टाइप का है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है. मतलब मैंने ये 500 यहां से माइनस किया, इधर प्लस किया. दैट्स ऑल, इतना ही बात है. समझ में आ रहा है, क्लियर. अभी फटाफट क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं. देखो, मैं
जितना क्वेश्चन हो पाएगा उतना इधर प्रैक्टिस करता हूँ। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अलग अलग बुक से, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट बॉक्स में बताओ, हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं। इधर पूरा जूम इन कर दो। ओके, फर्स्ट वन, X Limited is a profit of rupees 5 lakh after adjusting all the below transactions. First transaction क्या दे रहे? Goodwill write-up. Goodwill write-up कितना है? 5000. ये क्वेश्चन में आपको इधर लिखवा रहा हूँ, इसका मतलब है थोड़ा अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, Goodwill write-up 5000. Depreciation on fixed asset. Depreciation on fixed asset कितना है? 50,000. Next is loss on sale of fixed asset. Loss on sale of fixed asset. This one is 20,000. ये कहाँ से आ गया? ये जो loss था, the whole loss is belongs to machinery. Point number 4. Provision for doubtful debt. आप मेरे साथ ही लिखते चलो तो मेरा जब खत्म होगा आपका भी हो जाएगा। प्रॉब्लम 4, डाउटफुल डेट कितना है? 10,000. नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 5, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स. गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड tangible assets कितना हो गया? 7,500. ये किसका है? लैंड का है। मतलब लैंड में, लैंड को जब मैंने बेच दिया तब मेरा कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ। जब भी मैंने क्या था? मशीन को बेच दिया था तब मेरा लॉस हुआ था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन. फर्स्ट वन इज 31/3/2018. मतलब ये क्या हो गया? प्रीवियस ईयर. 31/3/2019 ये हो गया करंट ईयर. ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 52,000. ये हो गया 78,000. नेक्स्ट वन, प्रीपेड एक्सपेंसेस. यहाँ पे 2,000. ये हो गया 3,000. नेक्स्ट वन, ट्रेड पेबल कितना हो गया रे? 40,000. ये हो गया 51,000. नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसेस पेबल. कितना हो गया? 34,20. That's all. You are required to calculate cash flow from operating account. You are required to calculate operating cash flow from operating activity. क्वेश्चन में हमको इतना चीज दिया है. देखो एक काम करते हैं हम लोग फटाफट. क्या बोला था ये? एक बार रिवीजन करते हैं. ये क्या बोल रहा है भाई? मेरे पास इधर कितना प्रॉफिट है? 5 लाख ना, 5 लाख का प्रॉफिट है.
आफ्टर एडजस्टिंग ऑल थिंग्स, मतलब गुडविल राइट ऑफ एक्सपेंसेस है, इधर 5000 का बात हुआ था ना, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इधर आएगा 50000, नेक्स्ट वन इज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेम इधर आएगा 20000, नेक्स्ट वन इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10000, वही आएगा 10000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल लॉस 50000 क्या था, डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट वन इज गुडविल राइट ऑफ, नेक्स्ट वन क्या हो गया, गेन ऑफ सेल, ये कहां आएगा 7500, इधर मेरा आया। पहले आपको एक चीज देखना पड़ेगा, मैंने क्या बोला था, दो चीज आपको देखना पड़ेगा, वेदर इट इज इन कैश ट्रांजैक्शन और वेदर इट इज इन, पहले हमको देखा था अगर कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब अगर नॉन कैश का आइटम है, इधर से निकाल के इसको फेंक दो बाहर, हमारा जरूरत नहीं है। और सेकंड देखना पड़ेगा क्या, नॉन ऑपरेटिंग आइटम और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बात है, तभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से निकाल के 5 लाख से मुझे क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करवाना पड़ेगा। आप लोगों को इतना प्रॉफिट चाहिए, हम लोग पहले रफली कैलकुलेशन करते हैं, फिर एकदम प्रोसेस में जाएंगे। पहला क्या हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया 5 लाख, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सब जो चीज है दिस ऑल विल बी ऑलरेडी डिक्रीज्ड माय प्रॉफिट्स, ये जो 4 है मेरे प्रॉफिट को क्या कर दिया ये लोगों ने, कम कर दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से एड बैक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या क्या पहला 4 चीज ऐड कर रहा हूं, पहला क्या था 5000, नेक्स्ट वन इज 50000, नेक्स्ट वन इज 20000, नेक्स्ट वन इज 10000, आई थिंक सो 10000। ये जो 4 चीज है ये ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट को गलत मतलब नेगेटिव कर चुका है, कम कर चुका है, इसीलिए 4 को मैंने क्या करवा दिया, ऐड बैक करवा दिया। समझ में आ रहा है? ये वाला जो प्रॉफिट था ये सब क्या था, एक्सपेंसेस। ये वाला जो 7500 का इनकम था, ये मेरा प्रॉफिट को 5 लाख को बढ़ा दिया, मतलब दोस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर देयर, इट विल इंक्रीज माय प्रॉफिट, दोस डेबिट ट्रांजैक्शन देयर, इट विल बी डिक्रीज माय प्रॉफिट। सो मैंने क्या करवाया, ये जो ट्रांजैक्शन को गलत किया उसको क्या किया, प्लस करवा दिया। ये ऑलरेडी प्लस हो चुका है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, 7500 को लेस कर रहा हूं। इज दैट क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? ओके ओके, तो इसको हम अच्छे से करवाते हैं। इतना तक मैंने रफ में बता दिया क्योंकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई हमारे हाथ में हो सकता है। ओके, देखो क्या करते हैं। फर्स्ट वन क्या था रे, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर कौन सा बिजनेस है, एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ईयर क्या था, ईयर एंडिंग 31/3/2019, ईयर एंडिंग 31/3/2019। थोड़ा अच्छे से प्रेजेंटेशन करवाओ क्योंकि आप लोग इतना कर रहे हो और 2 मिनट थोड़ा अच्छे से टेबल पर बना दोगे तो कुछ लॉस नहीं हो जाएगा, उल्टा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा बनाओ। Okay, first one is cash flow from operating activity. Okay, cash flow from operating activity. First one, पहले आपको क्या देखना पड़ेगा रे, मैंने थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, पहला प्रॉब्लम है अच्छे से देखो, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम होना स्पीड हो जाएंगे। क्या बोला था रे, X Limited has profit of rupees 5 lakh. That is profit after adjusting all items. कितना प्रॉफिट था, 5 lakh. Is that okay? Next one, मुझे क्या करना पड़ेगा, add, क्या करना पड़ेगा, non-cash and non-operating items. ठीक, पहला हमारा क्या था नॉन ऑपरेटिंग आइटम में, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। द फर्स्ट पॉइंट इज गुडविल राइट ऑफ रुपीज 5000, गुडविल
राइट अप कितना आ गया 5000 समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन क्या था डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 50000 सेकंड पॉइंट डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट कितना था 50000। नेक्स्ट वन क्या था रे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 20000 लॉस ऑन सेल ऑफ क्या था फिक्स्ड एसेट कितना है 20000 समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन क्या था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हाँ कितना था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10000 इधर डाल दिया 10000 ये सब कहां से आएगा प्लस में आएगा। टोटल देखो नेक्स्ट वन क्या करना पड़ेगा लेस नॉन क्या से नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स नहीं लिखिए इधर एक्सपेंसेस लिखो। आइटम लिखने से दोनों को समझ जाता है मतलब इनकम एंड एक्सपेंसेस इधर हम ऐड क्या लिखेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिस वन इज लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स बोल रहा है ना हम लोग जैसे फॉर्मेट किए थे जैसे मैंने क्या बोला था नॉन कैश से उठा के फेंक दो उठा के फेंक दिया देखो हाँ एक पॉइंट गुडविल राइट ऑफ 5000 का है गुडविल एसेट है इधर से प्लस हो गया उधर माइनस हो जाएगा समझ में आ रहा है। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट 50000 इधर से माइनस हो मतलब इधर में प्लस हो रहा है उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ माइनस हो जाएगा इसका मतलब है जब हम एसेट का डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकालेंगे तब इसको माइनस करके निकालेंगे। तो मैंने बोला क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन नॉट इन नॉन कैश ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है गुडविल राइट ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस है तो इसीलिए हमको कुछ वैल्यूएशन के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा पर कैश फ्लो में ये दोनों नहीं आना चाहिए दोनों को हटा के बाहर फेंको। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं गुडविल राइट ऑफ इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं है ये नॉन कैश आइटम है इसलिए इसी को हटा के बाहर फेंको इधर एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट ये भाई मेरा किसका आइटम है नॉन कैश आइटम बाहर फेंको। समझ में आ रहा है। दिस वन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 20000 ये जो लॉस है ये मेरा क्या है नॉन ऑपरेटिंग आइटम है इसको क्या करना पड़ेगा तब भी जाके मेरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इधर प्लस हुआ मतलब उधर माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है इसको हटा के बाहर फेंको नहीं आना चाहिए अंदर। समझ में आ रहा है नॉन कैश आइटम है बाहर फेंको नॉन ऑपरेटिंग आइटम है इसको यहां से ऐड कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में लेस करो इधर लेस कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में ऐड करो दैट्स ऑल इतना ही चीज दिमाग में रखना है। तो नेक्स्ट वन इज लेस क्या करना पड़ेगा रे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नेक्स्ट वन इज वन गेन ऑन क्या था गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड एसेट गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना था रे 7500 तो 7500 को मैंने क्या कर दिया जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट जिधर भी काम कर रहे हो नेगेटिव आ रहा है तो तुम ब्रैकेट दे दो तभी तुमको पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव जब कैलकुलेटर यूज करोगे तो फटाफट पता चल जाएगा। तो नेट इसका एडजस्टमेंट कितना हो रहा है देखो कितना था 5000 प्लस 50000 प्लस 20000 प्लस 10000 टोटल हो गया कितना 85000 माइनस 7500 equals to 77,500। समझ में आ रहा है इधर इधर लिखो नहीं तो डायरेक्ट राइट साइड यहां लिख लो इसको 77,500 ये का क्या आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ पूरा फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं देखो थोड़ा सा टाइम लगे बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ
वर्किंग कैपिटल एकदम अच्छे से क्लियर रिप्रेजेंटेशन करवा, तो एग्जामिनर को एक वन मार्क काटने की जरूरत नहीं होगा। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये भी पूरा लिखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट वन क्या हो गया, ये 77,500 हो गया, इसको प्लस में है, उसको छोड़ बाद में देखते हैं। फिर अभी क्या करना पड़ेगा, next one is adjustment of वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट वन देखते हैं, पहला क्या देखो, ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल 52,000 था, कितना हो गया 78,000 हो गया, मतलब क्या हुआ है, कम हुआ है। समझ में आ रहा है? अगर ये देखो क्या हुआ है, मतलब क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस ट्रेड रिसीवेबल जैसे एसेट है, करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी मेरा क्या है, वही करंट एसेट 2000 था 3000 हो गया। ये सॉरी ये इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज, ये भी क्या हुआ है, इंक्रीज। तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कैश आउटफ्लो हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इधर भी माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हम लोग अच्छे से डिस्कशन करवाए थे करंट एसेट के बारे में। अगर ट्रेड रिसीवेबल मेरा इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल क्यों इंक्रीज होगा, अगर मैंने कुछ पैसा दिया होगा तभी मेरा इंक्रीज होगा, तो अगर मैंने पैसा दे दिया तभी मेरा क्या आ गया कि 52 72 था, मतलब बढ़ गया कैश फ्लो, इसको क्या करना पड़ेगा, कम करवाना पड़ेगा। आउटफ्लो हो गया मतलब कैश को कम करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज ट्रेड पेएबल 40,000 50,000, ये भी हो गया इंक्रीज। पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा। क्यों ऐड? ओके, अभी क्या करते हैं, देखो ये वाला आंसर और ये वाला क्वेश्चन को घर में फिर से एक बार देखो, अच्छे से देखो फिर से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, पूरा बैलेंस शीट होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आ गया ना, हमको क्या करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में मेरा ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो ओपनिंग बैलेंस इससे ऐड कर लो, फिर मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। भाई क्वेश्चन में इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है तो मुझे इतना तक एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? हमारा पैटर्न याद करो, ऑपरेशन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीन चीज को जोड़ दो, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड ओपनिंग स्टॉक, ऐड क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, तब भी मेरा क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। बट इन दिस क्वेश्चन it is not mentioned anywhere the opening balance of cash or closing balance of cash। हमको एक क्या पूछा है, only you are required to calculate cash flow from operating activity, operating activity का cash flow कितना हो रहा है, इतना ही हमको इधर पूछा है, इसीलिए हमने क्या किया, cash flow from operating activity निकाल दिया। अगर क्वेश्चन में मुझे बोला होता कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करवाओ, मैं फिर से बोल रहा हूं, whether question says that you have to prepare cash flow statement, then you have to add two lines here। समझ में आ रहा है? क्या लाइन ऐड करना पड़ेगा कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। समझ में आ रहा है? ये गलती मत करना, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है तो मुझे ये दो लाइन लिखना पड़ेगा, लिख देता हूं, आप लोग गलत मतलब देखो, if question says to do cash flow, if question says to do cash flow statement, तभी मुझे क्या करना पड़ेगा, दो चीज ऐड करवाना पड़ेगा, 5,47,500 क्या करना पड़ेगा, ऐड, ब्लैक नहीं लिखते, ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस, आएगा जब आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैश बैलेंस। समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन में कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए हो जाए तब भी मुझे ये दो लाइन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पता है क्या, जब इसे छोटा क्वेश्चन देता है और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है, ये दो चीज आपको बोलेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करो,
तुम बोलोगे सर ने तो करवाया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करके छोड़ दिया था, भाई ऐसा गलत करना। क्वेश्चन में बोला है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो करो, इसीलिए मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक किया। अगर क्वेश्चन में बोलता कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कुछ नहीं बोलता, तभी मुझे क्या करना पड़ता, ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्लस मुझे क्या आता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो आपका काम है अभी क्या करना पड़ेगा, एकदम क्वेश्चन अच्छे से देखो, आंसर करो और एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाओ घर जाके। तभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, इससे प्रॉब्लम करेंगे जिसका एकदम टोटल क्या होगा, इस फॉर्मेट का होगा। ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी इधर नहीं दिया है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कैश नहीं दिया है, पूरा सबको लेकर और एक प्रॉब्लम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तभी क्या हो जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट फिनिश। मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फिनिश क्यों बोलता हूं पता है क्या, जब नेक्स्ट क्लास में हम वो प्रॉब्लम करेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप लोग कर पाओगे कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? थैंक यू, गुड डे।